अच्छा, आज की जो लैब है इट्स अबाउट द एरे दैट हैज बीन स्टडीड लास्ट वीक. The basic, it's a very basic lab about the array, that how you can perform the basic operation in the arrays. Okay, so it's about to take input in array that I already told you in the last class. So but anyway we are going to repeat, so we get some more practice. Display the values of arrays, like whatever the values you have taken in it, you can display these values. And then find a specific location in array. So so this is a new thing that we are going to perform today. Okay, if you want to if you find out the like one particular location, you can ask the location, so it will give you the location's value. Okay, इस location पे कौन सी value save है. Then uh, there is replace a particular value in the array, like if you have an array of size 10, and if you taken some wrong value anywhere in the array, so you can correct the particular value in your array. So तो उसको replace कर सकते हैं value को. And perform addition in the whole array. So so how do you perform, like आपके array में कोई data है, सही ना. Let's suppose कि इस तरह कोई prices होती हैं किसी भी products की. So if the prices of products has been increased 10%, 5%, so on. So how you can change the values of the whole arrays values, सही ना. तो वो चीज़ हम यहाँ पे basically perform करेंगे. So read by yourself about what is an array, how array declares, and how to write array in C++. Very brief information has been given in your lab file. It's from the C++ tutorial. यहाँ पे आपने सीरो कोड खुद लिखना है. यहाँ पे सोर्स कोड जो है लैब का ऑलरेडी गिवन है, सही है ना. ये लैब मैं पूरी परफॉर्म करके दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं. सो at least in your mind के what is going on here. So basically if you can see the objective, it consists of some parts, like पहला part जो है values को take input, second is the display the values, third one is find a particular number location in the array, सही है ना. So this is the third one. Replace the value, fourth one, and perform addition. So there are the 5 things we are going to do in particular lab, सही है ना. So इसमें we have required some more variables for different purposes. So that's why we have to declare. I will tell you later कि हमें क्या क्या arrays की ज़रूरत पड़ी, why I have taken these names. Okay. So we required one array like of size 10. सही ना, size 10 का हमने array ले लिया कि इसमें हम 10 values को input ले सकते हैं. So first step is very easy कि if you want to take 10 values as input, so this is a simplest code. सही है. या आपने बोला enter 10 values, loop आपको हमेशा 0 से start करना है, क्योंकि array की पहली value 0 लोकेशन पे सेव होती है. उसको less than 10 which means कि 9 तक उसको execute कराना है, सही ना. तो 9 तक ये values input लेगा. So the step part 1 will be performed. So the second part is about the data display. Simple यहाँ पे जो C लिखा था जिसमें values input ली थी, इसी तरह C out आप लिख देंगे तो वही same to same values जो हैं वो आपको screen के ऊपर display हो जाएंगी. ठीक है. फिर उसके बाद थोड़ा सा ये लेंदी है कि फाइंड स्पेसिफिक नंबर लोकेशन, सही है ना. यानी मीन्स के यहाँ पे हो ये रहा है कि यू आर गोइंग टू फाइंडिंग अ स्पेसिफिक नंबर लोकेशन को आप फाइंड आउट कर रहे हो. यानी मीन्स कि आपने जो एरेज के अंदर वैल्यूज ली हुई हैं तो उसको आप बता रहे हो कि यार ये पर्टिकुलर लोकेशन कौन से लोकेशन पे ये वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है. ठीक है. उसका तरीका कुछ इस तरह से होगा कि यू हैव टेक नंबर एज इनपुट, सही है. अब आपने अपने एरे के अंदर वो वैल्यू जो है वो सर्च करनी है, सही ना. वो सर्च करेंगे. सर्च के लिए क्या, जितना साइज होगा ना उतना ही आपने लूप चलाना है. और फिर अपने एरे के अंदर 0 से लेके 9 तक की लोकेशन पे वो वैल्यू को आपने कंपेयर करना है, क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है. अगर तो वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिस्प्ले द लोकेशन, सही ना. अब जब मैं लोकेशन डिस्प्ले करवा रहा हूँ उसमें मैंने i+1 लिखा है. इसको मैंने क्यों लिखा है ये भी मैं आपको जब मैं अभी परफॉर्म करूंगा लैब तो उसमें बता दूंगा. क्योंकि वो थोड़ा सा हिंट यही देता हूँ कि ये i+1 इस वजह से लिखा है कि
जब हम 10 वैल्यूज यूजर से इनपुट लेते हैं तो हम एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि पहली वैल्यू जो होती है वो 1 लोकेशन होती है और आखिरी वैल्यू जो 10 लोकेशन होती है। लेकिन if the in array the first value is on 0 location, the last value on the 9th location. So but we are going to say that अगर हमें वो visible है कि यार ये 5th लोकेशन के ऊपर वैल्यू मौजूद है तो हमें 5 लिखा हुआ आना चाहिए कि ऑल्दो कि वो 4th लोकेशन है बैक एंड पे, लेकिन फ्रंट एंड पे वो 5th लोकेशन है जिसकी वजह से इसको 1 लिखा हुआ है। सही ना? वी विल डू इट लेटर। अच्छा देन द फोर्थ वन इज द रिप्लेस वैल्यूज। सही ना? रिप्लेस वैल्यूज में क्या है कि यू कैन गिव द पर्टिकुलर लोकेशन कि यार इस लोकेशन पे लेट सपोज कि 5th लोकेशन पे अगर कोई वैल्यू 10 लिखी हुई है उसको रिप्लेस करना है विद 100। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग गिविंग द लोकेशन एज द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू एंड द न्यू वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू रिप्लेस इट। सो आप क्या करेंगे कि अपने एरे में डायरेक्टली, इसमें आपको लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है ना? कि आप लोकेशन जो आप दे रहे हो, लेट सपोज कि आपने 5th लोकेशन दी तो उसमें से -1 इस वजह से कर रहे हो कि वो बैक एंड पे वो 4th लोकेशन पे वो वैल्यू मौजूद है। तो 5 - 1 हो जाएगा विच इज 4 एंड इफ योर न्यू वैल्यू इज 100 सो यू कैन रिप्लेस द 100 वैल्यू ऑन दिस 4th पर्टिकुलर पोजीशन एंड देन यू कैन डिस्प्ले द पर्टिकुलर एरे। यानी मीन्स के इस तरह से डेटा का जो डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। फिर एडिशन, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जी हम एडिशन क्या कर रहे हैं, अपने पूरे एरे में दो वैल्यूज को ऐड ऑन कर रहे हैं। सही है ना? सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, व्हाट इफ वॉट एवर द जीरो लोकेशन ऑफ द एरे, जस्ट ऐड 2 इन इट एंड सेव इन द लाइक इन द सेम एरे बट द वेरिएबल इज हियर अ लिटिल बिट डिफरेंट। कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। So whatever the value, let's suppose if the first value is 5, so it will be adding 7. So array में 7 की वैल्यू ऐड हो रही है। सही ना? और फिर क्योंकि लूप 10 टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है, हमें j की वैल्यू को भी चेंज करना है ताकि हमारी वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब ना हो और सिंपली हम आखिर में इसका आउटपुट देख लेंगे। सही है ना? चलें इसको हम वन बाय वन इसको परफॉर्म भी करते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन स्टॉप एंड आस्क मी। सही ना? मुझे स्टॉप करके पूछ लीजिएगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। सही ना? ऑब्जेक्ट पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे अपने पास ताकि मेरे पास ऑब्जेक्ट सामने हो। ऑब्जेक्ट को मैं ज़रा डिवाइड कर लेता हूँ कि हमारे जो टास्क हैं। सही ना? पहला है टू टेक इनपुट इन एरे, फिर डिस्प्ले एरे वैल्यूज, और फिर फाइंड स्पेसिफिक नंबर इन द एरे लोकेशन, रिप्लेस अ वैल्यू इन द एरे एंड परफॉर्म दिस थिंग। सही है ना? तो इस तरह से यानी मीन्स के ये हमारे पास 5 थिंग्स हैं जो कि हमने परफॉर्म करनी है एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, दिस इज माय डिफॉल्ट कोड जो मैं लिखता आता हूँ। इसको सेव भी कर लेते हैं। लैब ऑलरेडी लैब 9 से ये कोड सेव है मेरा, तो 09 करके सेव कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी कोडिंग। यहाँ पे INT लिख के मैंने अभी छोड़ दिया। सही ना? कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन कौन से इसमें वेरिएबल यूज़ करूँगा। तो आप क्या, जब भी आप कोडिंग करें इस तरह से INT लिख लें। सही है? और जो आपको पता है कि यार ये चीज़ मुझे इनपुट लेनी है। सही ना? जब भी एरे की बात होगी तो एक हमें लूप लेना पड़ेगा आई का। सही ना? तो आई हमें डिक्लेयर करना ही करना है। फिर एरे ऑफ साइज 10। सही है ना? ये आपने डिक्लेयर कर दिया। अभी मैंने इसलिए यहाँ पे आगे कॉमा डाल दिया कि अभी मेरा कंप्लीट नहीं है। सही है ना? अच्छा, सबसे पहले क्या होगा वही कि सी आउट प्लीज एंटर 10 वैल्यूज। इस तरह से आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी कांस्टेंट और वो
कंप्लीट हो गई, सही है ना। इस पर जब इनपुट लेना है तो सबसे पहले हम लूप लेंगे फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10। मेक श्योर इक्वल का साइन नहीं लगेगा। अगर आपने इक्वल का साइन लगाना है इसके साथ तो फिर आप यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। एरे ऑफ आई। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, सही है ना, जो वैल्यूज इनपुट लेने का तरीका है एरे के अंदर। फिर इसको डेटा को जो डिस्प्ले करवाना है, सिंपल कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक बार देके ना लाइन चेंज कर लेता हूँ कि इस तरह से कंपाइल करके एक दफ़ा देख लेते हैं इसको। लेकिन कंपाइल करने से पहले यहाँ पे मुझे कॉलन लगाना पड़ेगा। नो एरर नो वार्निंग, सही है ना। इसको रन करके भी देख लेते हैं। साथ के साथ जब थोड़ा सा प्रोग्राम बन जाए तो उसको रन करके चेक करते जाएं, सही ना, ताकि इन केस की अगर कोई एरर है तो उसको एरर को साथ के साथ उसको रिमूव कर लें, सही। तो लेट सपोज कि मैं ऐसा रैंडमली कोई वैल्यूज दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है सीक्वेंशियल हो। ये मैंने 10 वैल्यूज दी और जो 10 वैल्यूज इनपुट थी एज इट इज उसका आउटपुट आ गया, सही ना। तो 1 जो है, 1 मेरा जो आप इनपुट देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है 1, ये बेसिकली एरे की 0 लोकेशन है, ठीक है। 0 लोकेशन पे मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। इफ यू लाइक यू कैन पुट द एंड लाइन हियर एज वेल, so it will display all the inputs in the vertical line। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या था कि इसको मैं ज़रा सिंटैक्स को सही कर लूँ। नेक्स्ट थिंग थी मेरे पास फाइंड स्पेसिफिक नंबर लोकेशन इन द एरे, ठीक है। फाइंड द स्पेसिफिक लोकेशन इन द एरे। इससे मुराद ये है कि जो मैंने एरे में इनपुट लिया है उसके अंदर कोई मैं पर्टिकुलर वैल्यू है वो सर्च आउट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलें, इसमें इसको जब लिखेंगे तो सबसे पहले वो लिखेंगे सी आउट एंटर अ वैल्यू दैट सर्च इन एरे। सही, इस तरह से मैंने कोई भी सेंटेंस लिख दिया और अब मैं कोई वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो लेट सपोज कि वी भी ले सकता हूँ। वी मैंने उसके वैल्यू के लिए लिखा हुआ है कि जिसको रिप्लेस करना है, तो जैसे कोई एफ वेरिएबल ले लिया, सही है। वंस आई हैव टेकन एफ, तो इसका मतलब ये है कि ये मैंने यूजर से इनपुट लिया है एक नया वेरिएबल, सही ना। एक नया वेरिएबल इनपुट लिया तो मैं यहाँ पे ऊपर कॉमा डाल के एफ डिक्लेयर कर दूंगा, सही ना। एफ डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे ये जो वेरिएबल है, सही है ना, इसकी वैल्यू जो है वो आई हैव टू सर्च इन माय एरे, सही ना। सो इफ यू वांट टू सर्च a value in the array, again you have need the loop for I is equals to 0, because you don't know where the value is lying, any where the value is existing, see na. So you have to search in whole array। अच्छा, फिर यहाँ पे अब क्या होगा कि इसकी बेसिकली बॉडी बनेगी। बॉडी इस वजह से कि इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और सबसे पहली स्टेटमेंट जो होगी, यानी मीन्स के if you want to search something then you have to require the decision statements, if else statements में required होती हैं, see ना। So right now we have just required the if statement, see ना, कि if array of I is equals to f, so अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करें कि सी आउट लोकेशन ऑफ वैल्यू इज करके, यानी कुछ भी आपने सेंटेंस लिखा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आई और +1 हैंडल लगा दें, ठीक, इस तरह से।
अब मैं यानी मीन्स के इसको पहले कंपाइल करके देखते हैं, सबसे पहले कोई एरर तो नहीं है, नो एरर। अब मैं रन करके दिखा रहा हूँ। अब मैं दोबारा से कुछ वैल्यूज इनपुट ले रहा हूँ, सही ना, मैंने कुछ इस तरह से वैल्यूज इनपुट ली। सो दीज आर माई वैल्यूज डेट हैज बीन कम, क्योंकि मैंने एंटर नहीं लगाया था इसके बाद यहाँ पे, तो सेम लाइन में ये मुझसे पूछ रहा है कि एंटर अ वैल्यू डेट सर्च इन द एरे, सही ना। सो यू कैन सी द फर्स्ट वैल्यू इज 11, so 11 come first and the last value is 1000, so 1000 will be here, सही ना। तो अब मैं लेट सपोज कि आई एम गोइंग टू सर्च 88, सही ना, यानी मैं यहाँ पे देता हूँ 88। जब मैंने यहाँ पे 88 दिया तो उसने मुझे बताया कि लोकेशन ऑफ वैल्यू इज 8, सही ना, कि जो पार्टिकुलर वैल्यू जो आपने दी है 88, तो उसकी लोकेशन जो है नंबर 8 है, सही ना। अब इसको काउंट करें कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, सही ना। तो मीन्स के यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि 8 लोकेशन है, सही है ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 8 को डिस्प्ले करवाना था, सही ना। ऑल्दो के एरे की ये 7th लोकेशन है, ये एरे की 7 लोकेशन है, लेकिन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 8 लोकेशन है। दैट्स व्हाई आई ऐड +1 हियर, सही ना, 1 प्लस करने का ये मेरा मोटिव था, सही है। दिस इज अ सर्चिंग का पोर्शन जो है वो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू इन योर एरे, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट वन इज रिप्लेस अ वैल्यू इन द एरे, सही नहीं, यानी मीन्स कि आपके पास जो एरे की वैल्यूज जो आई हैं उसके अंदर आप कोई वैल्यू को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, सही है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि राइट डाउन योर वैल्यू। सो बिफोर राइटिंग द वैल्यू आई एम गोइंग टू पुट \n हियर, ताकि हमारे पास जो हर आउटपुट ना एक अलग अलग लाइन पे डिस्प्ले हो। अच्छा, एंटर हमने यहाँ पे लगा दिया, तो जैसे हमें यहाँ पे शुरू में \n लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंटर न्यू वैल्यू एंड लोकेशन। तो शुरू में लिख टू रिप्लेस एंटर, ओहो, टू रिप्लेस एंटर न्यू वैल्यू एंड लोकेशन। चलो इसको भी लाइन चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सी इन वी फॉर वैल्यू, एल फॉर लोकेशन, सही ना। जब भी हम सी इन के अंदर जो भी वेरिएबल लेंगे इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड समवेयर, यानी मीन्स के बेस्ट प्रेफरेंस यही होती है सबसे टॉप पे आप डिक्लेयर कर दें, सही। इन केस के अगर नीचे भी डिक्लेयर कर दें, सीन से पहले डिक्लेयर कर दें, तो इट्स ऑल्सो फाइन। सो the step of this replacing is very simple because we are focusing towards one specific location, so we do not need the loop. अब हमें लूप की जरूरत नहीं है, हमें चूंकि स्पेसिफिक लोकेशन दे दी गई है, लोकेशन जो दी गई है वो एरे ऑफ एल दे दी गई है, सही ना। नहीं, लेट सपोज कि अगर मैं 3 दे रहा हूँ कि लोकेशन 3rd पे जो लोकेशन है उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया जाए, सही ना। तो अगेन इफ आई एम गोइंग टू गिव बाय सीइंग द माय आउटपुट के भी मेरे पास 10 वैल्यूज है, उसमें 3rd लोकेशन की जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू डू -1 हियर, के एरे के अंदर वो एक लोकेशन प्रीवियसली सेव हो रही है, सही है, और जो न्यू वैल्यू है वो उसकी जगह ले लेगी, सही ना, उसकी जगह ले लेगी। और सिंपल आपने वंस द वैल्यू हैज बीन अपडेटेड, आपने उसको आउटपुट के फॉर्म में डिस्प्ले करवा देना है, सही ना। तो डिस्प्ले कराने के लिए आपको ये 3 स्टेप जो लिखे थे, ऑल्दो के ऊपर जो डिस्प्ले वाला स्टेप है, सो इट डजंट नीड इस 10 वैल्यूज आर, बट इफ यू कैन राइट इट, यानी 10 वैल्यूज इन एरे हो जाएगा मेरे ख्याल में। मैं थोड़ा सा सही, प्लीज एंटर 10 वैल्यूज इन एरे। इस तरह से सही। सो दिस इज माय 4th वन, जो 4th टास्क था हमारा इसके अंदर जो परफॉर्म करना था।
नो एरर, नो वार्निंग एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, लेट्स टेक वैल्यूज, गोइंग टू टेक रैंडम वैल्यूज। ये देखें, जैसे जिस वे में मैंने वैल्यूज इनपुट ली हैं उसी बेस में मेरे पास वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं। एंटर अ वैल्यू दैट सर्च इन द एरे, सही ना। तो अब मैं यहाँ पे अगर आप देखें कि मैंने 86 टू टाइम्स लिया है, सही ना, तो मैं 86 ही दे देता हूँ, सही ना। जब मैंने 86 दिया तो इट गिव्स मी बोथ लोकेशन, सही ना। लोकेशन 3 पे भी उसको मिला, लोकेशन 5 पे भी मिला, यानी देखिए अगर यहाँ से देखें कि 1 2 3 86 लोकेशन पे मिल गया, सही है। फिर 4 एंड 5th लोकेशन पे 86 मिल गया। तो जितनी दफ़ा वो पर्टिकुलर वैल्यू मुझे मिलेगी वो तमाम की तमाम वैल्यूज होंगी डिस्प्ले हो जाएंगी। अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इट विल बी रिमेन एम्प्टी, खाली रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे के टू रिप्लेस एंटर न्यू वैल्यू एंड लोकेशन, सही ना। तो अब मैं 86 मेरे पास 2 दफ़ा आ रहा है तो मैं ऐसा करता हूँ 86 को ही रिप्लेस करवा देता हूँ। तो इट्स अप टू मी कि लेट मी गिव कि 5th लोकेशन पे, यानी ये मैंने नहीं, अभी मुझसे कह रहा है कि एंटर न्यू वैल्यू, सही ना। मेक श्योर कि यू हैव टू राइट द सेंटेंस अकॉर्डिंगली, जैसे कि आपने इनपुट लेना है, ना। एंटर द न्यू वैल्यू, आई एम गोइंग टू टेक लाइक 1000, सही ना। 1000 मैं दूंगा एज ए वैल्यू और लोकेशन जो होगी मेरी 5 है। एंटर किया तो अब आप देखें कि 34 है, फिर 12 है, फिर 86 है, फिर 34 है, और फिर जो 86 था, सही है ना, वहाँ पे ये वैल्यू 100 से वो 1000 से रिप्लेस हो गई, while rest of the value remain the same, सही ना। So if you want to change a specific value in your array, so you can do it by this, सही ना। इस तरह से आपने ये चीज़ परफॉर्म कर ली। आखिरी स्टेप जिसमें ये था कि वॉट एवर योर एरे यू हैव एट द मोमेंट, यानी जो आपके पास एरे में जो 10 वैल्यूज हैं उसमें कुछ एडिशन परफॉर्म करना है, पूरे एरे के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करना है, सही है। सी आउट ऐड, लेट्स सपोज 5 कर देता हूँ, इन द होल एरे। तो जब भी whenever you have to required to search something, to add something in the whole array, you have required the loop, सही है ना। और अगर आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट कर रहे हैं तो देन विदाउट एनी एरे, विदाउट एनी लूप यू कैन डू इट, सही ना। तो यहाँ पे फिर हमें अगेन लूप की रिक्वायरमेंट होगी। लूप उतना ही चाहिए होगा जितना हमारा एरे का साइज है, सही है ना। तो एरेस के अंदर ये चीज़ अच्छी है कि इसमें एरे को जितना एरे का साइज आप डिक्लेयर करते हैं यूजुअली उतना ही हमें लूप रिक्वायर्ड होता है, जिसमें एरर के चांसेस ज़रा कम हो जाते हैं, सही है। अच्छा, अब इसमें चूंकि हम कोई स्पेसिफिक चीज़ सर्च नहीं कर रहे हैं, सही है ना, हमने सिर्फ ये करना है कि वैल्यूज़ को ऐड ऑन करना है, सही ना। तो आप क्या करोगे, यानी इट कैन बी डू बाय within the I variable, सही ना। what I am going to do, I will show you here कि array of I is equals to array of I plus 2। मुझे जे वेरिएबल की जरूरत नहीं है, सही ना। इफ यू वांट यू कैन यूज इट, सही ना। जे वेरिएबल को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन द आई इज जस्ट गिविंग द लोकेशन, सही ना। आई डजंट इफेक्ट ऑन योर वैल्यू चेंज, सही ना। सो हमेशा मेक श्योर के you have to write down +2 outside of the array। so what are going to do here कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि let's suppose कि फर्स्ट टाइम जब i की वैल्यू 0 थी तो 0 लोकेशन पे जो एरे की वैल्यू है उसमें 2 को ऐड कर दो, सही ना। मेक श्योर के आप कभी ये मिस्टेक ना करिएगा कि +2 राइट इन साइड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट, सही ना। सो व्हाट इट विल बी डू कि जो आपके पास सेकंड लोकेशन पे जो वैल्यू है उसको 0 लोकेशन पे मूव कर दो। इसका मतलब ये है कि मींस के if the array's third location value, it will be move on the 0 location, so you know, so make sure if you are moving the values within an array, so you can do like this. But if you want to add, subtract, delete, multiply and so on, whatever the calculation you have to do outside from the body of the array, सही ना। ये कर लेंगे और सिंपली इसी के अंदर ही, यानी मीन्स के इसको मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को एफिशिएंट कर रहा हूँ कि इसी के अंदर ही मैं जो एरे है वो डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सी आउट
तरह से, सही ना। तो जो मैं इनपुट ले रहा हूँ वही मेरा आउटपुट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, सही ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लैब मैनुअल के अंदर कोड लिखा हुआ है वही 100% वो कोड हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू राइट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सही ना। मीन्स कि हमें सिर्फ अपना ऑब्जेक्ट जो है वो अचीव करना है विद एन एफिशिएंट कोडिंग, यानी मीन्स के कम से कम लाइनों के अंदर कोशिश करके उसको अपने टारगेट को अचीव करना है। तो लेट्स सी के पहले चेक कर लें कि हमारा पर्टिकुलर आउटपुट जो है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा। कंपाइल किया और फिर ये रन एंड एग्जीक्यूट कर देंगे हम। 10 वैल्यूज, तो लेट्स सपोज कि रिवर्स ऑर्डर में कोई वैल्यूज में ले लेता हूँ ताकि इट विल बी इजियर फॉर मी। यानी 10, 9, 8, 7 एंड 10 वैल्यूज जो हैं जैसे मैंने इनपुट ली वैसे डिस्प्ले हो गई। एंटर अ वैल्यू दैट सर्च इन द एरे। अब लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12। एंटर किया तो देखें देयर विल बी नो एनी आउटपुट, यानी मीन्स के 12 उसको मिला ही नहीं, तो उसने कोई आउटपुट शो नहीं किया। कोड रन हुआ लेकिन चूंकि वो इफ की कंडीशन ऑलवेज फॉल्स हो गई तो देयर विल बी नो डिस्प्ले। टू रिप्लेस एंटर द न्यू वैल्यू, सही है ना। तो मैं लेट सपोज के 8 दे देता हूँ। 8 का मतलब हो गया कि मेरा 3, मैं 3 की बात कर रहा हूँ, सही ना। लेकिन अगेन लोकेशन पहले मुझे वैल्यू एंटर करनी है। वैल्यू में ले लेता हूँ 999 और यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ। सो हेयर इट शोज दैट के जो 3 था, 3 वो 8 वो 999 से रिप्लेस हो गया। एंटर नहीं लगाया था जिसकी वजह से सेम लाइन पे क्या आउटपुट आ रहा है। नाउ यू कैन रीड इट हेयर के ऐड 5 इन द होल एरे इज बिकम। अब आप देखें कि जो आपने 5 को ऐड करना था लेकिन गलती ये हुई कि ऊपर तो मैंने लिखा 5, सही है ना, और यहाँ पे जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो 2 कर रहा हूँ। सो दिस इज लाइक द लॉजिकल एरर। सो यू कैन कंसिडर एट के मैं यहाँ पे अभी सिर्फ 2 को ऐड कर रहा हूँ, सही ना। सो 10 में 2 को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा, 9 में 2 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, सही ना। 999 के अंदर आपने 2 को ऐड किया तो 1001 हो गया, आखिरी वैल्यू 1 थी वो 3 हो गई। तो लाइक दिस कि हमारा जो कोड है वो सही है, सही है ना। सो जस्ट लाइक राइट हेयर /n ताकि आउटपुट हमारे पास सेकंड लाइन में आ जाए। प्लस इधर अगर आपने ऊपर लिखा है कि ऐड 5 इन द होल एरे, तो इसका मतलब ये है कि आपने 2 नहीं, यहाँ पे आपने 5 लेना है, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर मैं रन कर कंपाइल रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो हमने वैल्यूज इनपुट ली हैं वो सही आ रही है नहीं आ रही। रैंडम वैल्यूज ले रहा हूँ। ये मेरी रैंडम वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब एंटर अस वैल्यू टू, सही है। सो सबसे पहली वैल्यू को ले लेता हूँ। तो लोकेशन ऑफ द वैल्यू इज 1, आंसर मेरा सही आ गया। रिप्लेस का कह रहा है, मैं रिप्लेस कर देता हूँ 0 से कि मेरी नई वैल्यू 0 है, और लोकेशन मैं ले लेता हूँ 10। इस तरह से क्या हुआ कि मेरी लास्ट लोकेशन की जो वैल्यू है वो 0 हो गई, सही ना। लास्ट लोकेशन की वैल्यू 0 हो गई। 121 मेरी इनिशियल वैल्यू थी, उसमें जब मैंने 5 को ऐड किया सो 5 इज बिकम 126, सही ना। ये चूंकि बहुत बड़ी फिगर है, आखिरी की देख लें 32 है, 32 में 5 को ऐड किया तो ये 7 हो गया, सही ना, 7 आ गया। फिर ये 23 है, सही ना। 20 ये इसके अंदर यहाँ पे तो ये 23 जो है ये 28 हो गया एंड सो ऑन, और आखिर में मेरे पास चूंकि 0 था, सही ना, 0 इज बिकम 5, यानी 5 का ऐड हो गया। सो लाइक दिस वे दिस इज आवर लैब, द लैब हैज बीन कंप्लीटेड। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी। जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन? ओके, एक क्वेश्चन किया हुआ है कि how will we add all of the array members together into one value? Could you perform and show that to? Very good question. Can you means के इस क्वेश्चन में आपने ये बोला है कि लेट सपोज के एरे के अंदर मैंने 10 वैल्यूज ली हैं, उसको ऐड करना है, सही है ना। हाउ यू कैन ऐड इट, सही है ना। आई थिंक दिस इज योर टास्क क्वेश्चन। लेट मी चेक कि मैं इसको चेक कर लूँ। अगर ये तो ये टास्क का हिस्सा है तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, हिंट दे दूंगा। लेकिन अगर ये टास्क का हिस्सा नहीं है तो फिर मैं परफॉर्म करके दिखा दूंगा। अच्छा जी,
टास्क को देख लेते हैं कि टास्क में लिखा हुआ है टेक 2 एरेज ऑफ साइज 5 एज इनपुट, सही ना। अब यानी इसका मतलब है कि आपने 2 एरेज डिक्लेयर करने हैं, एरे 1 एंड एरे 2। परफॉर्म क्या करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एरेज, सही ना, यानी मीन्स कि दोनों एरेज की वैल्यूज को ऐड ऑन करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। कैलकुलेट सम ऑफ इंडिविजुअल एरेज, सही ना, जो आपका क्वेश्चन था आदम, ये टास्क का हिस्सा है, सही है ना। आपने करना ये है कि एक एरे की वैल्यूज जो भी आपने इनपुट ली हैं, सही है ना, उसको ऐड करना है, सही है, और फिर दूसरे एरे की वैल्यू को ऐड करना है, और फिर उसमें ये बता देना है कि कौन सा एरे जो है वो बिगर है, सही ना। और मैं इसको रन करके वो सिर्फ यहाँ पे टाइप करके दिखा रहा हूँ लैब फाइल में कि आपने परफॉर्म क्या करना है, सही ना। ये देखें कि यहाँ पे एक तो वही इंटीजर वो कैपिटल हो रहा है, डजंट, उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अभी इसमें सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। एरे 1 लिख दें, ऑफ साइज 5 लिखा हुआ है, सही है ना, ऐसे, और एरे 2 ऑफ साइज 5, सही है। उसके अलावा फिर हमें जितने भी वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे वो आपने क्या कहते हैं डिक्लेयर करते रहना है, आई जे के एल, जो भी आपको चाहिए होगा। अच्छा, अब आगे जो बात हो रही है, इट्स अबाउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सही ना, यानी मीन्स कि इसको मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ कि एक टास्क तो ये है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एरेज आपको शो करना है, सही है, और सेकंड थिंग के कैलकुलेट सम ऑफ इंडिविजुअल एरेज एंड राइट विच एरेज आर बिगर, सही ना। तो ये आपने 2 एरेज आपने डिक्लेयर कर दिए, प्लस आपको ना हिंट के तौर पे बता रहा हूँ कि थर्ड एरे भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, सही ना। थर्ड एरे ऑफ साइज 5 ही डिक्लेयर करना पड़ेगा, इस वजह से कि जब आप 2 एरेज को आपस में ऐड कर लेंगे तो उसकी वैल्यूज को आप थर्ड एरे में सेव कर लेंगे, सही ना। लाइक यहाँ पे एरे 3 के अंदर एरे, ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी कि 2 एरेज को आप कैसे ऐड करते हैं। अब इसका क्या प्रोसीजर है, हमें लूप की जरूरत पड़ेगी, सही ना, लूप के बगैर ये काम परफॉर्म नहीं होगा। तो ये आपको, और लूप उतना ही लिया जाता है जितना एरे का साइज होता है, सही है। तो इस तरह से यानी मीन्स कि मुझे इन दोनों एरेज का ना डेटा जो है वो डिस्प्ले करवाना है, सही ना। सो वंस यू हैव डन टू डिस्प्ले द डेटा ऑफ एडिशन, यानी जब एडिशन का डेटा जो होगा, या एरे 3 यहाँ पे सी आउट करा देंगे, सही ना। फिर इसी तरह एरे 1 और एरे 2 को सब्ट्रैक्ट करवा के फिर एरे 3 के अंदर ही करवा दें, बिकॉज वी डू नॉट नीड द एरे 3 अगेन, सो सी आउट एरे 3, सही है ना। तो इस तरह से ये जो पहला पॉइंट है वो कवर अप हो जाएगा टास्क का, सही ना। अब बात आती है कि इंडिविजुअल एरे को आपने कैसे ऐड ऑन करना है, सही है ना। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेटली हमें ना लूप की ज़रूरत तो पड़ेगी, यानी लूप के बगैर हमारा काम नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा हिंट को जिस तरह से ले सकते हैं कि जिस तरह हमने लूप लिया, फॉर जो भी है आपने वैल्यूज लिख दी, सही ना। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा वैल्यूज फिलहाल, क्योंकि आपका टास्क है, यू हैव टू डू इट। आपने क्या किया कि आपने एक वेरिएबल लिया x, सही है, कोई भी वेरिएबल XYZ वेरिएबल लिया, और यहाँ पे ले लिया एरे ऑफ i, इस तरह से, सही है, यू हैव टेकन दिस वन। तो अब ये क्या हुआ कि आपके पास जो, लेट सपोज कि जो 0 लोकेशन है, सही है ना, उस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो x के अंदर कॉपी हो गई, सही है ना, x में कॉपी हो गई। आपने क्या किया कि एक वैल्यू, एक और वेरिएबल लिया t इज इक्वल्स टू x प्लस t कर दिया, सही है। इसको आप t प्लस इज इक्वल्स टू x भी लिख सकते हैं, सही ना, ये भी इसका लिखने का तरीका है, सही ना। इट्स अप टू यू कि आप के ऊपर है कौन सा तरीका आप चूज करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। तब होगा क्या कि लेट सपोज अगर ये एरे जो है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, तो हर दफा क्या होगा, 0 लोकेशन पे वैल्यू को यहाँ पे कॉपी करेगा और यहाँ पे इसमें ऐड करके टी में सेव कर देगा, सही है ना।
फिर नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 होगी यानी लोकेशन 2 पे आएगा तो टू लोकेशन की जो वैल्यू होगी उसको एक्स वेरिएबल में मूव करेगा, एक्स वेरिएबल से वो वैल्यू और जो टी में जो पुरानी वैल्यू है उनको ऐड अप कर देगा, विच मीन्स के लेट सपोज अगर मेरे पास एरे में 1 2 3 4 5 ये वैल्यू सेव हैं, तो टी के जब ये 5 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा फॉर का लूप, तो आपके पास टी के अंदर वैल्यू आ जाएगी ये 3 6 10 और 15, सही ना। तो टी के अंदर 15 की वैल्यू आ जाएगी। यही चीज आपने एरे 1 के साथ करनी है, यही चीज आपने एरे 2 के साथ करनी है, सही ना। दोनों की वैल्यूज आ गई। सो लेट्स सपोज के T1 जो है वो एरे 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें 15 है, सही है। और इसी तरह T2 है हमारे पास जो कि एरे 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी टोटल वैल्यू 20 आ रही है, सही है। तो आपने आखिर में एक स्टेटमेंट दे देनी है कि आउटपुट में बता देना है कि एरे 2 इज बिगर देन एरे 1, ये चीज मुझे आउटपुट बता देनी है। और ये आउटपुट कैसे आएगा, ये आउटपुट आपको इफ एल्स की कंडीशन से आ जाएगा, ठीक है। यानी मीन्स के आई थिंक कि मैंने तकरीबन पूरा जो टास्क है वो एक लिहाज से पूरा सॉल्व कर दिया है, सही ना। एनी अदर क्वेश्चन? If each and everything will be clear, then our today's lab has been completed, यानी मीन्स के लैब हमारी कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा मैं आपको क्विज से पहले एक दो चीज़ें बताना ही चाहता हूँ कि ताकि आपका क्विज अच्छा हो जाए, सही है ना। यानी मीन्स ऑल्दो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्विज, इट्स ईजियर क्विज, and but at least you have to know some basic information about it. So I'm going to mark the present from the quiz as well, यानी मीन्स कि मैं अलग से कोई फॉर्म क्रिएट नहीं कर रहा अटेंडेंस मार्क करने के लिए। जो आप क्विज मुझे देंगे तो उसमें आपके नाम और आईडीज मेरे पास आ जाएंगे, सो आई विल मार्क अटेंडेंस फ्रॉम दैट थिंग, सही ना। सो स्टिल यू आर नॉट लाइक 29 स्टूडेंट्स, लाइक 34-35 स्टूडेंट्स तो तकरीबन आ ही रहे थे। So make sure you inform the others to kindly join, to don't miss the quiz because it will be the mark quiz, यानी मार्किंग होगी quiz की। Any query? Are you wake up or sleeping? हाँ आके अब खोल के रखें कुछ, बस आखिरी अशरा रह गया। तो मेहनत करें, रातों में इबादत करें, दिन में आप पढ़ाई करें और दोपहर में आराम करें। हाँ चलें, एनीवे कोई आपके जहन में अगर इससे लैब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, so if you have any question related to if else condition or loop, you can ask me. अच्छा, मेक श्योर कि क्विज में ना टाइम लगा होगा, टाइम लगा हुआ है, सही ना, टाइमर। सो यू हैव लाइक देयर आर 10 MCQs एंड टोटल टाइम इज 20 मिनट्स, सही ना। 20 मिनट्स के बाद वो खुद ब खुद जो है वो स्टॉप हो जाएगा फॉर एवरीवन, लाइक द टाइमर इज बीइंग सेट बाय द टाइम, सही ना। मेरी यानी जो लैपटॉप है इसमें तकरीबन हमें 5 मिनट का टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसी टाइम की बेसिस के ऊपर शायद वो क्विज जो है आपका चलेगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक मैं अपना ना टाइम सेट कर दूंगा, तो इस टाइम के ऊपर क्विज जो होगा स्टॉप हो जाएगा। तो टोटल 10 MCQs, यू हैव 20 मिनट्स, विच मीन्स के यू हैव 2 मिनट्स पर क्विज पर क्वेश्चन। और मेक श्योर के द डेव C++ कंपाइलर इज नॉट अलाउड, सही ना। कंपाइलर को आप यूज नहीं करेंगे, you are not allowed to use the calculator as well. No calculator, no compiler, just take a copy like a paper, a blank paper and a pen. अपने पास blank paper और pen रख लें कि अगर आपने थोड़ा बहुत उसको solve करना है तो अपने pen paper पे करेंगे, it's up to you.
कि यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर रूल, सही ना। इसको डेफिनेटली आई कांट चेक ऑनलाइन बट आई एज्यूम दैट यू आर गोइंग टू डू। फिर एक और चीज़ जो क्विज के अंदर ये होगी कि अगर डोंट थिंक दैट इफ आई फॉर एग्जांपल अगर सवाल इस तरह से स्टार्ट हो गया कि फॉर आई इज इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस सी आउट आई प्लस 2। अगर सवाल इस तरह से स्टार्ट हो गया तो उसमें आप ये ना अगर ऑप्शन में आए कि जिसका आउटपुट जनरेट नहीं होगा तो उसको सेलेक्ट नहीं करना, सही है ना। यानी आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे जी आई तो डिक्लेयर हुआ ही नहीं है, या फिर इसमें हेडर फाइल नहीं है, या इसमें मेन फंक्शन नहीं है, तो डू नॉट कंसीडर ईच एनीथिंग। like if the code is written like this, so you have to directly think about the answer, सी ना। आपने आंसर जो है वो चूज करना है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर होगा 3 4 5 6 7, सही ना। 3 4 5 6 7 5 टाइम्स वैल्यू जो आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। सो यू हैव टू चूज दैट आंसर, डोंट थिंक दैट के आई इज नॉट डिक्लेयर्ड। लेट सपोज कि अगर यहाँ पे फॉर लूप एफ कैपिटल में, तो भी इसको आपने यही कंसिडर करना है कि लूप इज वर्किंग करेक्टली, ऑल्दो लाइक इन द कंपाइलर इट गिव्स एरर कि एफ कैपिटल है, सही ना। टाइपिंग के अंदर जो कोई मैंने बनाया है तो उसमें कहीं पे ये चीज़ आ सकती है, ठीक है। इसी तरह फिर सी आउट का सी कैपिटल हो सकता है। तो जो क्विज है, क्विज के अंदर इसको एरर कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। इसका जो आउटपुट है वो फिक्स है कि 3 4 5 6 7 इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। फिर अनदर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू अबाउट द क्विज के अगर यहाँ पे 2 लिखा है और उसके बाद मैंने लिखा प्लस, फिर मैंने लिखा आई, फिर प्लस प्लस लिखा, सही ना। दिस इज अ करेक्ट वे, सही है। और इसका जो एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। बेशक आप टाइप कर दें उसमें, अगर टाइप करना चाह रहे हैं चैट के ऊपर टाइप कर दें, आई कैन सी। क्या ऐड हो जाएगा? जस्ट 4? वाई 4? 3 वन टाइम आएगा? लेट सपोज के चलो मैं इसमें ऑप्शन देता हूँ कि यहाँ पे आप कह रहे हैं 3 है, या फिर 4 है, या फिर 3 4 5 6 7 है, या फिर 4 5 6 7 8 है। तो ये ऑप्शंस हैं। सो व्हाट डू यू थिंक के विच ऑप्शन 4 5 6 7 8 वाला होगा? हम्म, अब जैसा ये लिखा है नन ऑफ दी अबव, तो ये तो है ही नहीं नन ऑफ दी अबव। 3 4 5 6 7, यानी जो मैंने ऊपर लिखे हैं ये 4 ऑप्शन जो मैंने लिखे हैं, ये 4 में से एक ना एक सही है। अच्छा एक मिनट रुकें, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर लूँ, थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। एक मिस्टेक मुझे नजर आई है अपनी। आई इज लेस देन इक्वल टू 5 है, सी ना। आई इज लेस देन इक्वल टू 5।
अल्लाह खैर करे आप लोगों का क्विज कैसा होता है, लेकिन चले मैं इसका आउटपुट आपको बताता हूँ, सही ना। अ, सही है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों का आंसर मुझे सही लग रहा है, सही ना। देखें नंबर 1 के हमारा लूप आई से स्टार्ट हो रहा है, आई इज लेस देन 5, तो इसका मतलब है कि 5 टाइम हमारा आउटपुट जनरेट होगा, सही ना, 5 टाइम तो आउटपुट जनरेट होगा ही होगा। तो इस वजह से ये जो पहले ऑप्शन है ना, यानी मीन्स के 2 जो ऑप्शंस मैंने दिए हैं, दीज आर द रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कि जब ऊपर लूप लिखा हुआ है 1 से लेके 5 तक, तो इसका मतलब है कि 5 टाइम इसका सी आउट की स्टेटमेंट 5 टाइम एग्जीक्यूट करेगी, सही है। अब आप ये देखें सी आउट की स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है कि एक मैंने कांस्टेंट वैल्यू ली है, फिर यहाँ पे एक प्लस का साइन है, और फिर उसके बाद आई प्लस प्लस है, सही ना। सो इट मीन्स देयर आर द 3 थिंग्स हेयर, कि आई प्लस प्लस है और 2 है, सही ना। तो डेफिनेटली फ्रॉम दीज 2 ऑफ देम देयर विल बी द 1 इज द करेक्ट आंसर, सही है। तो कुछ हाँ, यानी अब इसमें यह है कि ये 2 है प्लस, आमतौर पे जब आप सी आउट में आई प्लस प्लस लिखते हैं, यानी इस तरह से जो मैंने बताया था आपको, दोनों लिख रहा हूँ अभी। अगर आप आई प्लस प्लस लिखते हैं, सही है ना, तो इट मीन्स के होता ये है कि वॉट एवर द वैल्यू ऑफ आई वो पहले प्रिंट होती है, यानी लेट्स सपोज यहाँ पे जो मेरा आउटपुट आएगा वो 1 प्रिंट होगा, सही है, और एडिशन बाद में परफॉर्म होता है, तो इट मीन्स के 1 प्रिंट करने के बाद उसको ऐड करेगा, इट मीन्स के वैल्यू ऑफ 2 जो होगी वो बाद में होगी, सही है। यहाँ पे क्या है कि प्लस प्लस आई लिखते हैं, तो उसमें मतलब है कि फर्स्ट इट विल बी एड 1, देन इट विल बी डिस्प्ले द वैल्यू, सो इन दैट केस इट विल बी डिस्प्ले द 2, ठीक है, ये बात क्लियर है। सो एक माइंड में आपकी एक जनरल बात आएगी यार, अगर ये है तो इस तरह से यहाँ पे 1 होना चाहिए, वन होना चाहिए, सही ना, इस तरह से। सो इस तरह से हमारे पास जो पहला आउटपुट है वो 3 जनरेट होना चाहिए, फिर 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, सही ना। सो लुक लाइक के हमें ये वाला आंसर जो है वो सही लग रहा है, सही ना, लेकिन दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। सो बिकॉज के जब एडिशन की बात आती है, व्हेन देयर इज अ ऐड नंबर इन इट, तो होता ये है कि इट विल बी कैलकुलेट फर्स्ट, ये पूरा का पूरा कैलकुलेट होता है और फिर वैल्यू को 2 में ऐड करता है। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू चूंकि 1 है, सही ना, 1 में ये पहले अपना एडिशन परफॉर्म करेगा, इसको करेगा 2, अब जब 2 कर देगा ना, उसके बाद फिर 2 को फिर 2 में ऐड करेगा, सही है ना। तो यहाँ पे ये 1 नहीं है, यहाँ पे 2 होगा। इस लिहाज से हमारा ये वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। इज दैट ओके? सो मेक श्योर कि आपने जब कैलकुलेट करें तो इस तरह मैं इस पे कर रहा हूँ पेंट के ऊपर, क्योंकि आप लोग को शो करना है मुझे, तो आप लोगों के पास एक रफ एस्टिमेट है कि 2 मिनट का टाइम है इस तरह का एक सवाल को सॉल्व करने के लिए, सही ना। तो जब आप सॉल्व करें तो उसको एक पेपर पे ज़रूर ट्राई करके देख लें, ठीक है। 2 मिनट दें, मैं आपको अब क्विज जो है ना सेट कर रहा हूँ टाइमर अकॉर्डिंग टू माय टाइम के साथ, फिर वो उस पर शेयर करा दूंगा जो उसका लिंक है क्विज का, सो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन, सही ना। और मेक श्योर के सबको बोल दें कि भाई इस टाइम पे आ जाएं, क्योंकि मैं जो मैं क्विज दे रहा हूँ इसी के अंदर ही अब मैं अटेंडेंस जो है वो काउंट कर लूँगा।